Now in this video we starting our chapter क्लास 10th ग्रेविटेशन फोर्स। ठीक है, ग्रेविटेशन से हमने क्या किया, पहले हमने ग्रेविटेशंस को पढ़ चुके हैं। नाउ वी कैन स्टडी अबाउट द न्यू टॉपिक विच इज़ अ our new topic of this chapter is यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में इस चैप्टर में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, सो लेट्स सी अबाउट what is universal law of gravitation. Okay, so universal law of gravitation is denoted by capital G. So for to understand how to understand to gravitational force of law of gravitational force, so let's see here we can understand before to go proceeding of this. ठीक है, we have something more to understand. There is a two objects A and B. Okay dear students, you can see that there is two objects A and B and their radius and center and their relative distance between them, ठीक है, is D. Okay dear students, now we can say that this will be described by through the F is equals to capital G and multiplication of the mass of the bigger object A and the smaller object M, and it is divided by distance square. Okay dear students, so let me discuss about it. Here mass of the two objects is directly proportional to the attracting force between two objects, and the distance is indirectly proportional to the of the force. Okay dear student, so it is denoted by through some formula. Let's see about it. Now force of attraction is directly proportional to the mass of bigger object and mass of small object, and is indirectly proportional to the distance of the object A and object B. Okay dear students, you can see that it is given on in our book is also F is directly proportional to the bigger M and small m. ठीक है, and is indirectly proportional to the square of the distance. Now we equating equation 10.1 and 10.2, which is both the equation having a proportional to the same thing of force. ठीक है, that is where we can say that F is proportional to the bigger M and small m and divided by D square, or is it also denoted as a F is equals to G multiplied by bigger M and smaller m and the square of the D. Here G is a constant proportionality. ठीक है,
जो जी की जो वैल्यू होगी वो एवरीवेयर सेम होगी, दैट इज नोन एज कांस्टेंट प्रोपोर्शनल। ओके डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी कैन से डैट, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ से, वी कैन डू समथिंग मोर, वी कैन ट्रांसफर now transfer to the d on the left hand side. Okay, then we get f multiplied by d square is equals to g and mass multiplication of small and bigger mass. Then we getting new formula, g is equals to f into d square upon m by m, and the SI unit of law of gravitation is denoted by all the respective units, ठीक है, ऑफ जस्ट लाइक दी फोर्स का जो यूनिट होता है, ठीक है, न्यूटन, डिस्टेंस की यूनिट होता है मीटर, एंड मासेस की यूनिट होते हैं किलोग्राम, ठीक है। तो इन सभी की यूनिट्स को रखने के बाद जो न्यू यूनिट्स मिलेगा विच इज द यूनिट ऑफ ग्रेविटेशन। नाउ जी इज इक्वल्स टू एफ की वैल्यू क्या होती है न्यूटन मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस, डिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या होती है विच इज़ अ मीटर। तो मीटर को हम लोग यहाँ देखेंगे तो स्क्वायर में इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर में गिवन है। मास क्या होती है, मास इज गिवन इन किलोग्राम इनटू किलोग्राम, ठीक है। तो हम लोग इसको फाइनल वैल्यू अगर देखें देन वी गेट जी इज इक्वल्स टू न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर, ठीक है। दो बार किलोग्राम है तो दो बार हो गया। इस किलोग्राम को अगर मैं ऊपर लेके जाऊंगा, ठीक है, देन एसआई यूनिट ऑफ जी इज इक्वल्स टू एसआई यूनिट ऑफ जी इज डिनोटेड एज अ न्यूटन मीटर स्क्वायर एंड किलोग्राम को मैं अगर ऊपर लेके जाऊंगा तो वो क्या हो जाएगा -2। सो दिस इज एसआई यूनिट ऑफ ग्रेविटेशन। सो सबसे पहले इसे जो जिस वैल्यू ऑफ जी इज फाउंडेड बाय हेनरी, जो वैल्यू ऑफ जी है उसको किसने फाइंड आउट किया था, हेनरी कैवेंडिश, ओके, इन 1731 to 1810 बाय यूजिंग सेंसिटिव बैलेंस, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, जितने भी वैल्यूज हैं यहाँ पे, ठीक है, उन सभी को एक सेंसिटिव बैलेंस की तरह पुट किया गया था एंड फाइनली वी गेटिंग अ वन नंबर ऑफ मास, ठीक है, दैट इज नोन एज 6.673 मल्टीप्लाइड 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम ⁻², ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ था, ये था जी की वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू फॉर जी। नाउ इम्पोर्टेंस ऑफ द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंस कौन क्या क्या इम्पोर्टेंस थे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में, ये हम लोग देख लेंगे यहाँ से, ठीक है। दिस इज रिटन हियर, सो दिस विल बी अ कौन कौन से इम्पोर्टेंट ग्रेविटेंस इम्पोर्टेंस थे यूनिवर्सल लॉ के। सो इसके थ्रू क्या होता था, फर्स्ट वन इज द फोर्स दैट बाइंड्स अस टू द अर्थ, ठीक है। जो फोर्स है जिसके थ्रू हम लोग क्या होते हैं, अर्थ से बाइंडिंग अप होते हैं, बाइंड्स होते हैं मतलब अर्थ से जुड़े होते हैं। तो दिस वन इज गिवन बाय थ्रू द दिस फॉर्मूला। सेकेंड लॉ इज द मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ, ठीक है। जो अर्थ के अराउंड जो मोशन हो रहा है, तो मोशन में क्या हो रहा है, जो अर्थ है वो कहीं जो मून है वो कहीं पे गिर नहीं रहा, जस्ट लाइक कि दिस वन इज अर्थ एंड इसके चारों तरफ क्या हो रहा है, जो मून होता है वो इट इज पुल्ड, ठीक है, वो पुल्ड होता है यहाँ पे, ना कि वो कहीं और नहीं चले जाता। तो दिस वन इज गेटिंग बाय थ्रू द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। थर्ड, द मोशन ऑफ प्लैनेट
अराउंड द सन, ठीक है, जो हमने अभी सन के लिए देखा था, जस्ट लाइक दिस वन, सॉरी अर्थ के लिए देखा था, तो अभी हम लोग सन के लिए देख लेते हैं। सन के सराउंड पे क्या होते हैं, जो जितने भी प्लैनेट्स होते हैं दे आर ऑल्सो पुल्ड बाय थ्रू द ग्रेट मास, ठीक है, ऑफ द सन। ओके डियर स्टूडेंट्स, और जो हमारे जो क्या बोलना चाहिए, इसकी वजह से क्या होता है, जो टाइड्स होते हैं, टाइड्स मतलब क्या होता है, जो हाई जो वेव्स होते हैं, ठीक है, दिस वन इज मेड बाय इन ओशियंस, ठीक है, ओशियंस जो होते हैं उनमें ये मून एंड सन के थ्रू ही जनरेट किए जाते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज फ्री फॉल, ठीक है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज फ्री फॉल, ठीक है। तो फ्री फॉल क्या होते हैं, इसके लिए एक एक्टिविटी करते हैं, ठीक है। एक स्टोन लेते हैं एंड टेकिंग वन स्टोन एंड थ्रो इट अप साइड, ठीक है, एंड इट रीचेस सर्टेन हाइट, ठीक है। यहाँ पर क्या हम लोग क्या अभी अर्थ के लेवल पे हैं, यहाँ से हम लोगों ने क्या एक सर्टेन हाइट पे वी गेटिंग सर्टेन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है, एंड आफ्टर दैट दिस ऑब्जेक्ट फॉलिंग डाउन टू द अर्थ। ओके डियर स्टूडेंट, सो यहाँ पर क्या होगा, जो एक ऐसी प्लेस होगी जहाँ पर जो ऑब्जेक्ट होगा वो क्या होने लगेगा, अर्थ के लेवल पे अगेन स्टार्ट होना, अगेन आने की वापस करेगा, ठीक है। सो एट द टाइम द ऑब्जेक्ट हैविंग अ ग्रेट एक्सेलरेशन, ठीक है, जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होते जाएगा, एक्सेलरेशन विल बी इंक्रीज्ड, वो इंक्रीज होते जाएंगे, ठीक है। जैसे जैसे जमीन की तरफ आते जाएगा, ग्राउंड लेवल पे आते जाएगा, द एक्सेलरेशन विल बी इंक्रीज्ड। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो दैट इज नोन एज फ्री फॉल, ठीक है। फ्री फॉल मतलब क्या होता है कि इट इज ओनली ड्यू टू द ग्रेविटेशन, ठीक है, जो अर्थ की जो ग्रेविटेशन होती है उसकी वजह से वो क्या होने लग जाते हैं, नीचे की तरफ आने लग जाते हैं, ठीक है, बिकॉज ऑफ द देयर इज अ ग्रेविटेशन ऑफ द अर्थ। सो दिस ग्रेविटेशनल फोर्स इज डिनोटेड बाय द स्मॉल जी, ठीक है। इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल जी से डिनोट करते हैं, ठीक है। एंड ग्रेविटेशन का जो एसआई यूनिट होता है इज सेम फॉर एसआई यूनिट ऑफ द एक्सेलरेशन विच इज अ मीटर पर स्क्वायर सेकेंड, ठीक है। एंड सो आप यहाँ से डेफिनेशन लिखेंगे, डेफिनेशन ऑफ किसका, डेफिनेशन ऑफ द फ्री फॉल, ठीक है। तो फ्री फॉल किसको बोलेंगे, व्हेन ऑब्जेक्ट, यहाँ से आप लिखेंगे इसे अपनी कॉपीज में, व्हेन ऑब्जेक्ट, यहाँ पे लिखे व्हेन एवर ऑब्जेक्ट फॉल टूवर्ड्स द अर्थ अंडर दिस फोर्स, दिस फोर्स की जगह आप लिखेंगे क्या, ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स आप लिख लेंगे यहां से, दिस के प्लेस पे अलोन वी कैन से दैट ऑब्जेक्ट आर इन फ्री फॉल। ओके डियर स्टूडेंट, सो यहाँ से स्टार्ट करना है और यहाँ पे लिखना है, ये हो गया आपका फ्री फॉल के लिए डेफिनेशन। नाउ ओके, फिर आगे ना जाते हैं अपने टॉपिक पे, ठीक है। एक हमने क्या लिया, वी टेकिंग वन स्टोन, ठीक है, ये हमने लाइन बनाई ग्राउंड लेवल, इसको हमने थ्रो किया, एक स्टोन लेते हैं, ठीक है, इट विल बी थ्रो, ओके, एंड रीचिंग अप टू द एनी height and this is coming down on the earth as a free fall. So here acceleration का जो मैग्नीट्यूड है, मैंने पहले बताया आपको, वो क्या होने लगेगा, इंक्रीज होने लगेगा, एक्सेलरेशन की जो वैल्यू होगी वो इंक्रीज होते रहेगा, ठीक है। सो मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल, ठीक है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल इज इक्वल्स टू द, मतलब जो फोर्स होगा यहाँ पे, जो फोर्स लगेगी विच इज इक्वल्स टू द मास ऑफ ऑब्जेक्ट एंड ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। ओके डियर स्टूडेंट, सो अकॉर्डिंग टू दिस वी कैन से दैट F is equals to mg, F force is equals to mass into gravitational force,
एंड वी नो डैट एफ इज इक्वल्स टू, हमने क्या निकाला था पहले, एफ इज इक्वल्स टू वी गेटिंग बिफोर जी मल्टीप्लाइड बाई द कैपिटल एम मल्टीप्लाइड बाई स्मॉल एम इंटू डी स्क्वायर। ओके, सो ये फिर से यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एफ की वैल्यू पुट करेंगे इन इक्वेशन 10.6 वी गेटिंग दिस इक्वेशन। ठीक है, एम जी इज इक्वल्स टू, एम जी यहाँ पे क्योंकि पहले फोर्स में पहले से ही था, और फोर्स की वैल्यू क्या होती है, जी मल्टीप्लाइड कैपिटल एम मल्टीप्लाइड बाई स्मॉल एम। ओके डियर स्टूडेंट, यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्मॉल एम से कैपिटल एम कैंसिल, जी इज इक्वल्स टू ग्रेविटेशनल इज इक्वल्स टू ग्रेविटेशन मल्टीप्लाइड बाई मास ऑफ द बिगर ऑब्जेक्ट अपॉन डी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या चीजें हो जाएंगी, यहाँ पे जो मास है कैपिटल एम विच इज द मास ऑफ अर्थ। ओके डियर स्टूडेंट्स, एंड डी इज अ डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द अर्थ। ओके, नाउ अब यहाँ पे क्या होता है, जो मास जो डिस्टेंस होती है, अर्थ इज लाइक अ सर्कल। ठीक है, सर्कल क्या है, तो सर्कल में क्या होता है, रेडियस होती है, तो रेडियस के अकॉर्डिंग यहाँ पे मास जनरेट होते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो मास होगा तो यहाँ पे हम लोग जो डिस्टेंस होगा वी टेकिंग इट एज अ आर बिकॉज इट इज अ रेडियस, हैविंग अ रेडियस। ओके डियर स्टूडेंट्स, एंड नाउ मोर थिंग, द अर्थ इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। जो अर्थ होता है यहाँ पे वो क्या होता है, इन अ इक्लिप्टिकल फॉर्म में है। ठीक है, कंप्लीट सर्कल नहीं है वो, एकदम एग्जैक्टली सर्कल नहीं है। ठीक है, वो थोड़े से इक्लिप्टिकल फॉर्म में है। सो इसकी वजह से क्या होता है, जो इसकी वजह से रेडियस ऑफ द अर्थ इंक्रीजेस फ्रॉम पोल्स टू इक्वेटर। ठीक है, इक्वेटर क्या होते हैं, जो पार्ट्स में डिवाइडेड है ऑन द अर्थ द इमेजिनरी लाइंस। ठीक है, हमने एसएसटी में पढ़ा हुआ है। सो उसके अकॉर्डिंग्स क्या होते हैं, आपके जो पोल्स होते हैं वहाँ पर जो रेडियस की जो साइज होती है वो कम होती है, और जो इक्वेटर जो आपके जो हमने डायग्राम दिख रहा होगा आपको यहाँ पे, उसके जस्ट अपोजिट क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। एंड वी कैन से दैट द वैल्यू ऑफ जी, ठीक है, जो वैल्यू ऑफ जी होती है वो ग्रेटर होती है इन द पोल्स। पोल्स में क्या होती है, वैल्यू क्या होती है जी की, वो ज़्यादा होती है। ओके, फिर यहाँ पे दिया हुआ है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जी। ठीक है, वैल्यू ऑफ जी को कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें मिलेंगी, 9.8, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू जो होती है वो होती है 9.8 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, सो इसके लिए क्या होती है, यहाँ पे हम लोग जितने भी वैल्यूज हैं जैसे लाइक कि ग्रेविटेशन, मास ऑफ द बिगर ऑब्जेक्ट एंड रेडियस, सभी की वैल्यू पुट करेंगे। एंड आफ्टर दैट वी गेटिंग अ क्रॉस टू ऑल एंड वी हैव अ गेटिंग वन कांस्टेंट वैल्यू विच इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन हो गया। ये कैलकुलेशन में वैल्यू सभी यहाँ पे नोटेड डाउन है, आप इसको यहाँ से बना लेंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, एंड आपके लिए एक होमवर्क रहेगा, जी एंड कैपिटल जी में आपको डिफरेंस लिखना है कि दोनों क्या क्या चीज़ें होती हैं, दोनों की डिफरेंसेस क्या क्या हैं। ठीक है, दोनों को ग्रेविटेशनल से रिलेटेड है, बट स्मॉल जी को ग्रेविटेशनल बोला जाता है, ग्रेविटी बोला जाता है। ठीक है, नाउ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, जो भी ऑब्जेक्ट है अर्थ में उनमें क्या प्रभाव होंगे ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। लेट्स सी। सो फॉर टू अंडरस्टैंड द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स of the earth we can understand by through this one activity 10.3. ओके, तो यहाँ पर क्या करेंगे, वी टेकिंग अ सीट ऑफ पेपर, एक पेपर की सीट ले लेते हैं, एंड ऑल्सो वन स्टोन। ठीक है, एंड ड्रॉप टू बोथ दिस एट द सेम टाइम टू द ग्राउंड। ठीक है, ग्राउंड में ड्रॉप करेंगे। वी गेटिंग दिस कि देयर इज अ स्टोन हैविंग अ मोर एक्सेलरेशन देन टू द पेपर, बट दे आर रीचिंग ऑन द अर्थ साइमल्टेनियसली। ठीक है, दोनों ही क्या होते हैं, अर्थ पर पहुंचते हैं एक के बाद एक, सो डैट बिकॉज अर्थ इज हैविंग अ स्मॉल वेट, ठीक है, एंड पेपर इज हैविंग अ
sorry, the stone having a bigger weight, okay, heavier weight, and the paper having a low weight. Okay, dear students, therefore friction of the air, due to the friction of air, the paper will reach on the ground by लेट ऑफ द स्टोन. ठीक है, जो स्टोन्स के थ्रू लेट काफ़ी पहुंचती है वहाँ पे. नाउ वी कैन कंक्लूड दैट, ठीक है, कि यहाँ पर क्या हो रहे हैं, दोनों ही ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो अर्थ में पहुँचते हैं, बट अकॉर्डिंग टू देयर वेट एंड ऑल्सो वेट दैट इज कॉल्ड मास की वजह से वो क्या हो रहे हैं, थोड़े से स्लो रेट पे पहुँचती है. ठीक है, पेपर on the ground. So we can say that this is due to a influence of the G, because all the object falling on the earth. Okay, dear student, so here all the equations of the motion follow to the this way. ठीक है, जितने भी motions of equations है, equation 1 2 3, ठीक है, लॉ ऑफ मोशंस, तो इसके अकॉर्डिंग क्या होते हैं, दे आर ऑल फॉलो टू द लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स. ओके, बिकॉज देयर इज ऑल हैविंग अ एक्सेलरेशन, दैट इज वे. ओके, सो मास क्या होता है, मास इज द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द मेजर ऑफ इट्स इनर्सिया. ठीक है, मास का जो मास ऑफ जो ऑब्जेक्ट होता है, इट्स मेजर ऑफ इट्स इनर्सिया होती है. एंड इनर्सिया इज ग्रेटर व्हेन मास इज ग्रेटर. जो इनर्सिया होती है वो ग्रेटर होती है जब मास ग्रेटर होता है. हमने इनर्सिया वाले चैप्टर में इसको पढ़ा हुआ था. ठीक है, एंड जो मास होती है, इट्स ऑल सेम. Mass is a constant which is same in everywhere on the earth, on the moon, and even on the anywhere in the space. ठीक है, it is only a deflected their weight by through only their gravitational force. weight, अब weight क्या होता है, mass अलग चीज होती है, weight है. ठीक है, now weight क्या होती है, the weight of an object is the force with which it is attracted towards the earth. ठीक है, जो वेट होता है वो किसी भी ऑब्जेक्ट का क्या होता है, फोर्स होता है, विच इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द अर्थ. अर्थ की तरफ जो फोर्स अट्रैक्ट होती है ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट. इसी को ही वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट बोला गया. ठीक है, इट्स टोटली डिपेंडिंग ऑन द मास एंड इट हैविंग अ एक्सेलरेशन ड्यू टू अ ग्रेविटी. क्या होगा, हम लोग किसी भी वेट के अगर ऑब्जेक्ट को अगर हम थ्रो करते हैं इन द अप साइड, सो इट विल बी रीच्ड अगेन इन द अर्थ ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स. सो वी नो दैट F is equals to ma, mass into acceleration. So now that is called, in the sense of gravitational, it is a force is equals to mass into gravitational force. So what is definition of क्या बोलना चाहिए, mathematical formation of weight is denoted as a weight is equals to mass into gravitation. ठीक है, because it having a both acceleration and मास बोथ. ठीक है, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन को रिप्लेस किया गया है जो फोर्स का जो फॉर्मूला होता है मास इनटू ग्रेविटी एंड मास इनटू एक्सेलरेशन में. ठीक है, okay dear students, so we will meet in our next video. Thank you so much.